اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر۔ حجاب شفاعت میں یہ نور 1000 سال تک سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ کی صدائیں بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔ یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، چاند و سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز و حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہندی قرآن بیان۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، تمام کائنات کو، تمام مخلوق کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا کیا ہے، کون سی چیز کو بنایا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ تخلیق کائنات یعنی پورے عالم، پورے دنیا کی، پورے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا ہے اور کس طریقے سے پورے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اور سامعین اکرام، اسی ویڈیو میں ہم اور آپ جانیں گے کہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں نور کہا ہے یا بشر کہا ہے، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور سب سے ضروری بات دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی کو کیسے پیدا کیا اور اس نور سے پورے کائنات کو کیسے بنایا، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لوح قلم کو کیسے بنایا، ہم اسی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو آئیے ہم اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے جب کوئی بھی وجود موجود نہ تھا تو صرف ایک اللہ تھا۔ اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک، اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر، اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی
आला। दूसरे हिजाब हिजाब अजमत में 11,000 साल तक सुबहाना आलिम सिर्री वल हफी। इसी तरह तीसरे हिजाब हिजाब इज्जत में 10,000 साल तक सुबहानल मलकिल मन्नान। हिजाब खैबत में 9,000 साल तक सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। हिजाब जबरूत में 8,000 साल तक सुबहानल करीमुल अकरम। हिजाब रहमत में 7,000 साल तक सुबहाना रब्बिल अर्शिल अजीम। हिजाब नबूवत में 6,000 साल तक सुबहाना रब्बिल इज्जतिही अमा यासिफून। हिजाब किबरिया में 5,000 साल तक सुबहानल अजीमिल आज़म। हिजाब मंजिलत में 4,000 साल तक सुबहानल अलीमुल करीमुल कबीर। हिजाब रिफअत में 3,000 साल तक सुबहाना ज़िल मुल्किल वल मलाकूत। हिजाब सआदत में 2,000 साल तक सुबहाना मन यज़ीलुल अशियाहि वला यज़ूलु। और हिजाब शफात में ये नूर 1,000 साल तक सुबहाना रब्बियल अज़ीमी व बिहम्दिही की सदाएं बुलंद करके बस अपने रब की तारीफ करता रहा। इसी तरह ये नूर इन 12 मुख्तलिफ हिजाबों में हजारों साल तक मुसलसल अपने परवरदिगार की तारीफ करता रहा। बस फिर इस नूर को बनाने वाला परवरदिगार इन 12 हिजाबों में भी उस नूर से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर हुआ कि उस परवरदिगार ने दोबारा फिर से एक और हुक्म जारी किया और उस हुक्म के नतीजे में कुर्सी को वजूद में लाया गया। इसी तरह कुर्सी के बाद लोह और लोह के बाद कलम को पैदा किया गया और फिर परवरदिगार की तरफ से कलम पे ये हुक्म जारी किया गया कि ऐ कलम अपने बड़ी तारीफों वाले परवरदिगार के नाम से लिखना शुरू कर। तो कलम ये अर्ज करने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार क्या लिखूं? तो परवरदिगार ने कलम से ये फरमाया कि ऐ कलम अपने लिखने की इब्तदा मेरे इस कलाम से कर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जैसे ही कलम ने नाम खुदा के साथ नाम मोहम्मद को सुना तो अर्ज करने लगा कि ऐ तमाम तारीफों वाले मेरे परवरदिगार ये इतने अजीम मर्तबे का मालिक कौन है कि जिसका नाम तू अपने नाम के साथ लिखना चाहता है? तो परवरदिगार ने कलम से ये फरमाया कि ऐ कलम अगर तू जानना चाहता है तो फिर जान ले और इसके मुकाम को पहचान ले कि ये मेरा महबूब अव्वल है, वो महबूब के जिसने सबसे पहले तेरे रब की इबादत की, तेरे रब का जिक्र किया और जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई मौजूद ना था तो इसने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। ऐ कलम तेरा परवरदिगार अपने हबीब से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अनकरीब वो बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पे वो अपने हबीब को एक ऐसा मुकाम अता करेगा कि जो मुकाम तेरे परवरदिगार ने ना अपने हबीब से पहले किसी को अता किया होगा और ना ही वो अपने हबीब के बाद किसी को अता करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर का तारुफ कलम से कराया और फिर कलम से तारुफ कराने के बाद अल्लाह के हुक्म से नाम मोहम्मद को कलम के जरिए लोह पे तहरीर किया गया और वो नाम 4,000 आसमानी साल तक उस लोह पे नूर की तरह चमकता रहा। इसी तरह फिर लोहो कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के कुछ हिस्सों से एक आलम को पैदा करने का इरादा किया। तो बस अल्लाह ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म से अल्लाह के हबीब का नूर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अपने अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया, चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को वजूद अता किया। लेकिन इन 4 हिस्सों से इस सारे आलम को बनाने के बावजूद भी ये सब तारीक था, इसमें अंधेरा था। तो अल्लाह ने अंधेरे में डूबे हुए इस आलम को रोशन करना चाहा, इसे रोशनी से भरना चाहा। तो बस अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा सिर्फ रोशनी को पैदा किया और इसी तरह अल्लाह के हबीब के नूर के इन्हीं 5 हिस्सों से पहली मर्तबा एक आलम को वजूद में लाया गया। व्यूवर्स, यहाँ पर एक अहम खास और जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक के अव्वल होने के बारे में पैदा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा मखलूक के अव्वल हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए पहले से ही कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में ये इरशाद फरमाता है कि
आसमानों और जमीनों और इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का अब्द है। व्यूअर्स, अब्द अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बंदा, यानी बंदगी करने वाला या फिर इबादत करने वाला। अगर मैं आपको इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह बता रहा है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की इबादत करता है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 81 में ये फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, कि ए मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो कि जिसने सबसे पहले अल्लाह के हाँ अल्लाह की इबादत की। इसी तरह कुरान में एक और जगह पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान और कायनात में मौजूद एक एक जर्रा अल्लाह का मुसलमान है और अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किए हुए हैं। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल अनाम की आयत नंबर 163 में ये फरमाता है, हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो पहला मुसलमान कि जिसने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किया। व्यूअर्स, जब आप इन दोनों आयात को पढ़ेंगे तो इन आयात में मुसलमान और सरे तस्लीम हम, इन दोनों लफ्जों का मतलब जरूर याद रखिएगा। और इन दोनों लफ्जों का मतलब एक ही है और वो मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिश और अपने वजूद को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देना। अब जैसा कि मैं आपको कुरान से हजरत रसूल खुदा का मखलूक अव्वल होने के बारे में बता चुका हूं, तो व्यूअर्स यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस ज़मीं पे एक इंसानी वजूद की सूरत में मौजूद रहे, लेकिन हकीकत में आप एक नूर हैं। और आप एक नूर हैं, इस बात का जिक्र तो अल्लाह ने बगैर गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए भी कुरान में दो जगहों पर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 और सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 46 में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया हुआ है। बस फिर जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के इन 5 हिस्सों से एक आलम को बनाकर मुकम्मल किया, तो इस आलम को बनाकर मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने इस आलम में अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए एक मखलूक को पैदा किया। और फिर इस मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इस मखलूक से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। बस फिर इस पहले आलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर से एक और दूसरे आलम को पैदा किया और इस दूसरे आलम में भी एक और दूसरी मखलूक को पैदा किया और फिर इस दूसरी मखलूक को भी पैदा करने के बाद इस मखलूक से भी अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। और इसी तरह करते करते अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया और इन तमाम आलमीन में अल्लाह ने मखलूकाते हिन, मखलूकाते बिन, मखलूकाते जिन, मखलूकाते निस्नास और फरिश्तों और करोबियों के अलावा भी लाखों मुख्तलिफ मखलूकात को अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए पैदा किया। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे, आलम अरबी जुबान का लफ्ज है और आलम का मतलब है कायनात। और अगर मैं आपको कायनात का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जो कुछ भी मौजूद है ये सब का सब सिर्फ एक कायनात या फिर एक आलम कहलाता है। और जिस आलम में हम इंसान रहते हैं ये आखिरी आलम है और इस आलम से पहले अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया था। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इन आलमीन से भी अहम खास और जरूरी सवाल ये पैदा होता है कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन आलमीन से क्या लेना देना। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। व्यूअर्स, अब मुझ बंदे फकीर को इस बात का इल्म नहीं है कि हकीकत में ये आलमीन कितने हैं या फिर इनकी तादाद कितनी है, लेकिन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये फरमाते हैं कि इन आलमीन की तादाद 9,99,999 है। लेकिन वो लोग जो रिवायात पर यकीन नहीं रखते और इस सवाल का जवाब सिर्फ कुरान से हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की 2 आयात में सवाल का जवाब कुछ यूं बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है
اور پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت قرآن کی پہلی سورہ کی دوسری آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام عالمین کا خدا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کی ان دونوں آیات کے ذریعے غور و فکر کرنے والے لوگوں کو ان کے اس سوال کا جواب کچھ یوں بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، جان لو کہ جہاں جہاں تک میں اللہ رب العالمین ہوں، وہاں وہاں تک میرا حبیب رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اسی طرح پھر ان 9,99,999 عالمین کو پیدا کرنے کے بعد ان عالمین میں سے جس مخلوق نے حضرت رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کیا تو پروردگار عالم نے اسے انعام کے طور پہ جنت جیسی عظیم نعمت کی جزا دی، اور جس نے آپ کے بتائے ہوئے رستے کا انکار کیا تو پروردگار عالم نے اسے دوزخ جیسی وادیوں میں پھینک کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دی۔ بس پھر اسی طرح وقت گزرتا رہا، جس طرح اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا اور ان عالمین میں مختلف مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر ان مختلف مخلوقات سے اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا، تو بالکل اسی طرح اللہ نے اب یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک اور عالم یعنی 10 لاکھویں عالم کو پیدا کرے گا، اور اس عالم میں اب وہ ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا کرے گا کہ جو مخلوق باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں سب سے بہتر ہوگی، جس کا کوئی ثانی نہ ہوگا، جو اشرف المخلوقات ہوگی۔ تو بس اللہ نے اس اشرف اور بہترین مخلوق کو پیدا کرنے سے قریباً 2000 سال پہلے اپنے عرش پہ یہ اعلان کیا کہ اے تمام فرشتوں، جان لو کہ میں انقریب زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جو مخلوق میری اب تک کی پیدا کردہ تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی، جسے میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا اور جو زمین و آسمان میں خلیفۃ اللہ کے خطاب سے جانا جائے گی۔ لہٰذا تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی بہترین مخلوق کی تخلیق کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکے تو تم تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر کر اس مخلوق کی تعظیم کرنا۔ بس جیسے ہی فرشتوں نے یہ اعلان سنا تو تمام فرشتے فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح سے تو نے مخلوقات نسناس، مخلوقات ہن، مخلوقات بن اور مخلوقات جن کو زمین پہ غالب کیا تو انہوں نے تیری زمین کو فساد سے بھر دیا، تیری زمین پہ ایک دوسرے کا ناحق خون بہایا اور تیری ہی زمین پہ تیرے ہر حکم کی نافرمانی کی۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً یہ مخلوق بھی انہی مخلوقات کی طرح تیری زمین میں فساد بھرپا کرے گی، تیری زمین میں ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گی اور تیری ہی زمین پہ تیرے حکم کی نافرمانی کرے گی۔ اے تمام تعریفوں والے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر، ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ہر لمحے تیری بادشاہی کا ذکر کریں گے، زمین و آسمان کو تیری تعریفوں سے بھریں گے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ اے پروردگار، بس تو ایک مرتبہ ہمیں وہ مقام تو عطا کر کہ جو مقام تو انقریب اس اشرف اور بہترین مخلوق کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے تمام فرشتوں کو اور فرشتوں کے تمام سرداروں کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور ان سب سے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، جان لو کہ جس بات کا علم تمہارے رب کے پاس ہے اس بات کا علم تمہارے پاس نہیں، اور جہاں تک بات تمہاری اعتراض کی ہے تو جان لو کہ اس مخلوق میں سے جو بھی اللہ کی زمین میں فساد بھرپا کرے گا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باتحقیق تمہارا پروردگار تو اس مخلوق کو اس لیے وجود میں لانا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی خدائی کو جان کر، اس کی کبریائی کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے۔ لہٰذا اے اسرائیل، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے میرے پاس لا، تیرا پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کی تخلیق کرے گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3340 جبکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 480 اور قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت یہاں پر انسان کو اس کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اے انسان، دیکھ ذرا کہ میں نے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا، لیکن میں نے تجھے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر عزت کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو مقام تیرے مقابلے میں ساری کائنات بھی حاصل نہ کر سکی۔ اور اگر اب بھی تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی یا پھر میرے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلا تو جان لے کہ تو ان قریب
अनकरीब इन तमाम आलमीन में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से होगा। बस फिर इसी तरह अल्लाह के हुक्म पर हजरत इजराइल जमी पे आता है और जमी से हर तरह की मिट्टी को उठा के अल्लाह के अर्श पे ले जाता है और फिर अल्लाह उस मिट्टी से एक पुतला बनाता है और वो पुतला हजारों साल तक लेसदार और खनखनाती मिट्टी की मानिद बेजान पड़ा रहता है। जबकि दूसरी तरफ परवरदिगार आलम आलम अरवा को कायम करता है और आलम अरवा में तमाम रूहों से ये वादा लेता है कि ऐ तमाम रूहों, क्या तुम इस बात की गवाही देती हो कि क्या वो मैं ही नहीं कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और उन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो तमाम रूहों ने कहा कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरी खुदाई का इकरार करते हैं, बेशक वो तू ही है कि जिसने तमाम आलमीन को पैदा किया और उन तमाम आलमीन में तमाम मखलूकात को तख्लीक किया। तो बस फिर परवरदिगार आलम ने तमाम रूहों से ये फरमाया कि ऐ तमाम रूहों, तो फिर जान लो और मेरे हबीब के मुकाम को पहचान लो कि मैं अनकरीब तुम्हें एक जिस्म में डालकर जमी की तरफ भेजने वाला हूँ। बस तुम्हारे परवरदिगार का ये इरादा है कि तुम सब जमी पे जाने के बाद मेरे हबीब की नबूवत का इकरार करना और उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। और जान लो कि जमी पे जाने के बाद अगर तुम में से किसी ने भी मेरे हबीब की नबूवत का इनकार किया या फिर उसके बताए हुए रास्ते पे ना चला तो तेरे परवरदिगार को उसे दोज़ख की आग में फेंक देने से कोई नहीं रोक सकता। बस अल्लाह के इस हुक्म को सुनते ही तमाम रूहें फौरन सजदे में गिर पड़ी और उन तमाम रूहों ने फरिश्तों को गवाह बनाकर अल्लाह के इस वादे पर कायम रहने की गवाही दे दी। व्यूअर्स, आलम अरवा में रूहों से लिए हुए इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में मौजूद है, जबकि कुरान में करीबन 3 जगहों पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81, सूरह आराफ की आयत नंबर 172 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह के बारे में जिक्र किया है। और आलम अरवाह के बारे में इमामों के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जान लो कि अल्लाह ने हमारे इस आलम को भी पैदा करने से 2000 आसमानी साल पहले आलम अरवाह को पैदा किया और अल्लाह ने आलम अरवाह के मैदान में आदम से लेकर कयामत की आखिरी घड़ी में भी पैदा होने वाले हर इंसान की रूह से एक ऐसा वादा लिया था कि जिस वादे का इकरार अनकरीब तुम्हें जन्नत और इनकार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में ले जाने वाला है। लेकिन अफसोस कि तुम अपने गुनाहों की दलदल में डूबकर उस वादे को भुला चुके हो। व्यूअर्स, यहाँ पर हजरत इमाम जाफर सादिक जिस वादे के मुतल्लिक फरमा रहे हैं तो वो आलम अरवा में लिया हुआ यही वादा है कि हर इंसान जमी पे पैदा होने के बाद या फिर जमी पे पहुंचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में भी साफ साफ मौजूद है। इसी तरह बस परवरदिगार आलम आलम अरवा में भी तमाम रूहों के सामने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता रहा। परवरदिगार आलम ने आलम अरवा में अपने हबीब की तारीफें बयान करने के बाद अपने हबीब को मजीद इज्जत और एहतराम अता करने के लिए इल्म व मारिफत का मुकाम अता करना चाहा। तो इल्म व मारिफत का मुकाम अता करने के लिए परवरदिगार आलम ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के नतीजे में नूर से बने हुए 20 दरियाओं को वजूद में लाया गया। और फिर इन 20 दरियाओं को वजूद में लाने के बाद नूरे मोहम्मद को इन 20 दरियाओं से गुजारा गया। अल्लाह ने इन 20 दरियाओं में अपने वो खास उलूम रखे थे कि जिनका इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को भी मालूम न था। बस फिर जैसे ही नूरे मोहम्मद नूर से बने हुए इन 20 दरियाओं से अल्लाह के उन खास उलूम को हासिल करके बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद नूरे मोहम्मद से 1,23,999 नूर के कतरे टपके। तो बस अल्लाह ने तमाम मखलूकात को अपने हबीब का मुकाम बताने के लिए अपने हबीब के नूर से टपकते हुए 1,23,999 नूर के कतरों से ही 1,23,999 पैगंबरों की तख्लीक का इरादा किया। और बस फिर उस वक्त की तमाम मखलूकात को ये बताया कि जान लो कि अगर मेरे हबीब के नूर से टपकते हुए सिर्फ एक कतरे का इतना मुकाम है तो फिर खुद मेरे हबीब के नूर का क्या मुकाम होगा। बस फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलसल हर जगह हर मखलूक के सामने अपने हबीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता रहा।
इसी तरह करते करते वक्त गुजरता रहा और फिर उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक की तख्लीक का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह ने आलम अरवाह के मैदान में रूहों से लिए हुए वादे के करीबन 2000 साल बाद आदम के जिस्म को मुकम्मल करके उसमें अपनी रूह फूंकने का इरादा किया। तो बस जैसे ही अल्लाह ने आदम के जिस्म में अपनी रूह फूंकी तो तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिरकर आदम की ताज़ीम करने लगे। लेकिन फरिश्तों के तमाम सरदारों में से एक सरदार इब्लीस ने आदम को सिजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर इब्लीस से ये फरमाया कि ऐ इब्लीस, किस चीज ने तुझे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर मजबूर किया, या फिर क्या तू अपने आप को मेरे आला और बुलंद मुकाम वालों में से समझता है? तो इब्लीस तकब्बुर में आकर कहने लगा कि ऐ मुझ इब्लीस को आग से बनाने वाले मेरे परवरदिगार, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस आदम को हकीर सी मिट्टी से पैदा किया। मैंने लाखों साल तेरी इबादत की, तुझे हजारों सिजदे किए और हमेशा सिर्फ तेरे हुक्म की तामील की। ऐ परवरदिगार, तेरा ये हुक्म मेरे मुकामो मर्तबे के खिलाफ है कि मैं आग से बना हुआ शैतान इस मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान की इस बात का जिक्र कुरान में सूरह साद की आयत नंबर 75 में बयान किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की इसी आयत में ही एक निशानी को भी छुपा रखा है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह साद की आयत नंबर 75 में ये इरशाद फरमाता है कि ऐ इब्लीस, मेरे हुक्म के बावजूद तूने आदम को सजदा करने से इनकार क्यों किया? और फिर आगे इसी आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमाता है, या फिर क्या तू अपने आप को मेरे आला और बुलंद मुकाम वालों में से समझता है? तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान की सूरह साद की आयत नंबर 75 में बुलंद मुकाम वालों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया था। अगर मैं आपको कुरान की इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त इब्लीस से ये फरमा रहा था कि ऐ इब्लीस, क्या तू अपने मुकाम को मेरे हबीब के मुकाम के बराबर समझता है कि जो तू आदम को सजदा ना करे? व्यूअर्स, यहाँ पर भी एक अहम खास और बहुत ही जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा का आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त मौजूद होने के मुतल्लिक पैदा होता है। तो व्यूअर्स, कुरान से तो मैं आपको रसूल खुदा का मखलूक के अव्वल होने के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कुरान के अलावा यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि जामे अल तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3609 के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे असहाब से ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, जान लो कि मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। इसी तरह व्यूअर्स, अल्लाह के इतने अजीम हुक्म के बावजूद भी इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बस अब जैसे ही इब्लीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात को और अल्लाह के हुक्म को अपने तकब्बुर में आकर हकीर समझा तो बस अल्लाह ने गजबनाक होकर इब्लीस से ये फरमाया कि ऐ इब्लीस, दफा हो जा अल्लाह के दरबार से। अल्लाह ने तेरी इबादतों को, तेरे सजदों को तेरे मुंह पे मारा। बस तू जलील है और अनकरीब एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले बदबख्त काफिरों में से है। बस अल्लाह का ये हुक्म नाफिज करना ही था कि अल्लाह के हुक्म पर इस बदबख्त काफिर को फौरन जमीन के भयानक जजायर की तरफ फेंक दिया गया। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबी में रखा और हजरत आदम को और बीबी हव्वा को इज्जत और एहतराम के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन जन्नत में दाखिल होने के बाद जैसे ही आदम और हव्वा से एक भूल हुई तो उसी भूल के नतीजे में अल्लाह ने आदम और हव्वा को भी जमीन की तरफ भेज दिया। और बस फिर जिस दिन से अल्लाह ने शैतान और इंसान को इस जमीन पे भेजा तो उसी दिन से ही इस जमीन पे शैतान और इंसान की दुश्मनी का आगाज हुआ। शैतान और इंसान की दुश्मनी का आगाज हुआ। नाजरीन, आप लोगों ने सुना कि अल्लाह ताला ने इस पूरे कायनात को किस तरीके से पैदा किया और नूरे मोहम्मदी से कौन कौन सी चीज को बनाया है। अल्लाह ने नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जी हाँ दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर एक सुन्नत को अपनाएं
اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یعنی ہمارے اور آپ اپنے نبی پر یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم تمام مسلمان خوب درود سلام پڑھے۔ امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔